إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام بہنیں بخیر و عافیت ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ صحابیات کی زندگی اور ان کی زندگی کے واقعات، اس کا کورس آج سے انشاءاللہ ہم نے شروع کیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اس چیز کی صلاحیت دے کہ میں بحسن خوبی ذمہ داری کو انجام دے پاؤں، اور ہم تمام کو اس چیز کی توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگ جو کچھ سنیں اس سے ہم لوگ اچھی طرح سے سیکھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے. تھوڑی سی بات ہم اس میں بھی کر لیتے ہیں کہ آخر اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے کہ ہم صحابیات کی زندگی کے بارے میں پڑھیں اور ان کی زندگی کو جانیں. تو دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو حال ہے اس وقت، ہم تمام یہاں خواتین جمع ہیں، تو سب سے جو اہم ضرورت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم جس مقصد سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس لیے ہماری تخلیق کی ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اپنے اس مقصد کو سمجھیں. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں اور آپ آج اپنے اس مقصد کو بالکل کھو چکے ہیں، بالکل بھول چکے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ، اولین وجہ تو یہ ہے کہ ہم آج دنیا کی رنگینیوں میں حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی ترجیحات ہیں وہ دوسری چیزوں کو بنا رکھا ہے. مثال کے طور پر ہمارے لیے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے کام، ہماری ضروریات، ہماری خواہشات، ہماری انا، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں. اور بعد میں پھر نمبر آتا ہے پھر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور اپنے دین کا اور پھر دینی ذمہ داریوں کا. تو جب ہماری ترجیحات اس طرح کی ہوں گی تو پھر یقیناً ہم ان چیزوں میں بالکل پیچھے رہ جائیں گے جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا. تو بہرحال صحابیات کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کا جو مقصد ہے، اور ہماری کوشش تھی کافی ٹائم سے کہ ہم اس کورس کو شروع کریں تاکہ ہمارے اندر اس چیز کی صلاحیت پیدا ہو اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا جو حال ہے وہ ایسا ہی نہ رہے اور ہم اسی طرح سے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں کہ ہم نے جس طرح سے آج اپنی ترجیحات کر رکھی ہیں کہ ہم نے صرف اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے خواہشات، ضروریات اور اپنے جذبات، اپنے احساسات کو ہی اپنی کل دنیا بنا رکھا ہے. تو اس چیز سے ہم اپنے دماغ کو بدلیں اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ نہیں، میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں کو پورا کروں اور پھر میں جنت حاصل کروں. یعنی ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے، گول ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے آخرت کی کامیابی کا. تو انشاءاللہ جب ہم یہ صحابیات کے کارنامے پڑھیں گے، تو جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صحابیات تمام تر خواتین ہیں، تو جب ان کے کارنامے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں، اور جس طرح کے کارنامے انہوں نے اپنے زندگی میں کیے وہ ہم بھی کریں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح مائیں تھیں، عورتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی ذمہ داریاں تھیں، ان کا بھی گھر تھا، ان کے بھی جذبات تھے، احساسات تھے، سب کچھ تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جس چیز کو سب سے زیادہ سمجھا تھا وہ تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جس کو آج ہم نے بالکل فراموش کر دیا. تو انشاءاللہ سب سے پہلی بات جو ہم اس میں دیکھیں گے وہ یہ کہ صحابیات کا معاملہ ایسا تھا کہ صحابیات نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. بہت کچھ صحابیات کر کے گئیں. ان کے مذہبی کارنامے ہم دیکھ لیں، اس میں بھی صحابیات ملتی ہیں.
اس کے علاوہ آپ سیاسی کارناموں میں دیکھ لیں، اس میں بھی آگے آگے ملتی ہیں خواتین. اس کے علاوہ اگر ہم علمی کارنامے دیکھیں تو اس میں بھی خواتین آگے آگے ملتی ہیں. تو ان کے پاس کسی طرح کا کوئی بہانہ نہیں موجود تھا آج ہماری طرح، جیسے آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، حتیٰ کہ ایک اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے بھی آنا آج ہم گوارا نہیں کرتے. ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ یہ ذمہ داری نہیں لے سکتی، یا میں بچوں کے ساتھ اس چیز کو نہیں سن سکتی، اور اگر سن بھی لیا تو میرے لیے عمل انتہائی مشکل ہوگا. لیکن جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، صحابیات کی زندگی پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، سب سے پہلی چیز تھی، سب سے اول چیز تھی، وہ تھی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا، وہ تھی اللہ کی اطاعت کرنا. وہ بھی ہماری ہی طرح تھی، ہماری ہی طرح بچوں کی مائیں بھی تھیں، شوہر کی بیویاں بھی تھیں، اور والدین کی اولاد بھی تھی، سب کچھ تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر طرح سے اپنے تمام ذمہ داریوں کو انجام دیا، اور انہوں نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا. اب اگر ہم صحابیات کا مذہبی کارناموں پر نظر ڈالیں تو ہم جانتے ہیں کہ صحابیات نے مذہبی خدمات بھی بہت زیادہ انجام دی، اور اس میں بھی وہ پورے جوش خلوص کے ساتھ، عزم اور استقلال کے ساتھ انہوں نے اس خدمت کو انجام دیا، اور اس طرح سے انجام دیا کہ اس کی نظیر مشکل سے ہی ملے گی. کس طرح؟ آئیے غزوہ احد کو یاد کر لیتے ہیں. غزوہ احد میں جب کافروں نے حملہ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانصار باقی رہ گئے تھے، تو حضرت ام عمارہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ کو اکیلا دیکھ کر، آپ کے ساتھ کم لوگوں کو دیکھ کر، اور فوراً سینہ سپر ہو گئی. اور پھر جب کفار آپ کی طرف بڑھے تو انہیں تیز تلوار سے روکتی رہتی تھی. یعنی تلوار چلانے کا ہنر ان کے اندر تھا، یقیناً انہوں نے سیکھا ہوگا. اور کس لیے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. اور آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری انگلی اگر ایک دن اپنے کچن کے کاموں میں کٹ جائے تو ہم اس کا 2-4 دن تک رونا روتے رہتے ہیں. لیکن یہ صحابیات وہ تھیں جنہوں نے میدان جنگ میں مردوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور تلواریں چلائیں. اور اسی طرح غزوہ خندق کو لے لیتے ہیں. غزوہ خندق میں حضرت صفیہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے بہادری سے ایک یہودی کو قتل کیا، اور یہودیوں کے حملے کو روکنے کی جو تدابیر اختیار کی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے، وہ یقیناً حیرت انگیز واقعہ ہے، حیرت انگیز باتیں ہیں. اسی طرح غزوہ حنین کو لیتے ہیں. غزوہ حنین میں ہم ام سلیم کا دیکھتے ہیں کہ ام سلیم کا خنجر لے کر نکلنا وہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے. اسی طرح جنگ یرموک میں جب جو خلافت فاروقی میں ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت اسماء بنت ابو بکر کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، ام آبان کا واقعہ ملتا ہے، ام حکیم کا واقعہ ملتا ہے، خولہ کا، ہندا کا. اور حضرت جویریہ نے بہت زیادہ دلیری کے ساتھ جنگ کی تھی، اور اس جنگ کے میدان میں وہ آگے آگے رہی. وہ ہماری ہی طرح عورتیں تھیں. اور اس کے علاوہ اور بھی میدان جنگ میں صحابیات طرح طرح کے کام انجام دیتی تھی، خدمت انجام دیتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ خود کو عورت سمجھنے کی بنا پر اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی، نہیں، بلکہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ پانی پلاتی تھی، زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی، مقتولوں اور زخمیوں کو اٹھا کر میدان جنگ سے لے جایا کرتی تھی، تیر اٹھا کر دیتی تھی، اور پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ خبر کھودنے کا ہنر جانتی تھی، تو وہ اس کام کو بھی انجام دیتی تھی. اور پھر فوج کو ہمت دلاتی تھی. کس طرح سے؟ یعنی اپنے باپ بھائیوں کو ہمت دلاتی تھی، اور ان کو اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے، اگر آپ شہید بھی ہو گئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے. اور حضرت عائشہ کا ام سلیم کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ مشک بھر بھر کر غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی. تو یہ حال تھا مذہبی جو انہوں نے خدمات انجام دی، یہ تھا حال ان لوگوں کا. اس کے علاوہ اگر ہم سیاسی کارنامے دیکھیں تو سیاسی کارناموں میں بھی صحابیات بہت آگے آگے رہی. اور اگر علمی کارناموں کی بات کی جائے تو اس میں بھی، یعنی خرد کا ذکر ہو، یا تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، فرائض ہو، ان تمام چیزوں میں صحابیات بہت زیادہ مہارت رکھتی تھی. اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ اور ام ورقہ نے تو پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا. یعنی ان کا عورت ہونا اس چیز میں آڑے نہیں بنا، اس چیز میں رکاوٹ نہیں بنا کہ وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت عائشہ کو خاص کمال حاصل تھا تفسیر میں، انہیں ایک مہارت حاصل تھی، اور انہوں نے
कुरान की तफसीर न सिर्फ ये कि खुद सीखी लोगों, बल्कि सहाबा इकराम की बड़ी जमात को उन्होंने इल्म दीन पहुंचाया और इस चीज को अंजाम दिया। इसके अलावा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बेशुमार अहदीस भी मनकूल हैं और उम्मे सलमा से भी बेशुमार हदीस मनकूल हैं। इसके अलावा हदीस जिन लोगों से मरवी हैं उसमें हजरत उम्मे अतिया, अस्मा बिन्त अबी बकर, उम्मे हानी और फातिमा बिन्त कैस भी, ये भी कसीर रिवाया वाली खवातीन हैं जिनसे बहुत सारी हदीस रिवायत हैं। और फिर उसके अलावा हजरत आयशा के फ़िक़ा में फ़तवे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और इतने ज़्यादा हैं, इतनी कसीर तादाद में है कि उस पर जिल्दें तैयार हो सकती हैं। और इसके अलावा उम्मे सलमा के फ़तवे अगर हम देखें तो उसका भी एक छोटा रिसाला तैयार हो सकता है। और उसके अलावा भी हज़रत सफ़िया और हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत जुवैरिया, हज़रत मैमूना, फ़ातिमा ज़हरा, उम्मे अतिया, अस्मा बिन्त अबी बकर, लैला बिन्त ख़ाइफ़ और खौला बिन्त दुवैत, ये तमाम, आतिका बिन्त ज़ैद, सुहेला बिन्त सुहेल, फातिमा बिन्त कैस, ज़ैनब बिन्त हब्श, उम्मे सलमा, उम्मे ऐमन, उम्मे यूसुफ के फतावे भी एक रिसाले में जमा किए जा सकते हैं। और ये तमाम ही हमारी और आपकी तरह खवातीन थी। साथ ही साथ जब इस तरह के मामलात में, यानी इल्मी कारनामे इनके इतने ज्यादा थे, साथ ही साथ अमली कारनामे भी इनके अंदर मौजूद थे। वो किस तरह से कि ये लोग तिजारत भी किया करती थी, और तिजारत में जो सबसे ज्यादा नाम है जिन खातून का, वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा है, जो तिजारत किया करती थी बड़े पैमाने पर। और फिर अक्सर सहाबिया जो थी कपड़े बनाया करती थी, यानी कपड़े सिला करती थी, काश्तकारी किया करती थी, और भी बहुत सारी चीजें थी, जो छोटे छोटे बिजनेस भी ये लोग करती थी, खेती बाड़ी करती थी। और ये तमाम ही हमारी और आपकी तरह औरतें थी, खवातीन थी। तो इंशाअल्लाह आज जिन के बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। हम देखेंगे कि ये क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी इस्लाम आने के बाद, और इस्लाम से पहले इनकी जिंदगी किस तरह से थी, और ये किस कदर खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम लाने वालों में सबसे पहले जिनको शर्फ हासिल हुआ इस्लाम लाने का, उसमें भी हजरत खदीजा शामिल हैं। तो चलिए आज इंशाल्लाह हम हजरत खदीजा के बारे में देखेंगे। तो जब हजरत खदीजा की बात आती है तो सबसे पहली जो उनकी तारीफें हैं वो ये हैं कि वो वफा की तस्वीर थी, सच्चाई का खूगर थी, मुजस्समा अखलाक थी, पाकीज़ा सीरत और बुलंद किरदार थी, और इंतहाई नरम दिल थी, इंतहाई समझदार, अक्ल दानिश और जूदो सखा की पैकर थी। और बावजूद इसके कि वो इंतहाई नाज़ो नाम में पली हुई थी, बेपनाह दौलत उनके घर में थी, दौलत उनके घर में बारिश की तरह से बरसती रही। और सबसे बड़ा जो उनका शर्फ है वो ये है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ इन्हीं को हासिल हुआ। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आसमान से सिर्फ हजरत खदीजा के लिए ही सलाम भेजा। ये भी इन्हीं के शर्फ में आया, इन्हीं को इस चीज का शर्फ हासिल हुआ। और ये भी बात हम इनके बारे में जानते हैं कि हजरत खदीजा वो खातून है जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई। और फिर सबसे तवील अरसा यानी 24 साल और चंद माह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत भी इनको हासिल हुई, और इस चीज की सादत इन्होंने हासिल की। और इनका ही घर यानी हजरत खदीजा का घर वो घर है जहाँ पर जिनके आंगन में आसमान से वही नासिल होती थी, जिनके घर में वही नासिल हुई, और ये इनकी ही खुशकिस्मती थी जो हजरत खदीजा के ही हिस्से में आई। और फिर हजरत खदीजा ने जो कुर्बानियां दी, जिस तरह से एक बीवी होने का एक इंतहाई अच्छी बीवी, इंतहाई बाखलाक, इंतहाई बावफा बीवी होने का जो हमें एक सबक दिया, वो ये कि जब शौबा अबी तालिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैद हुई, महसूर हो गई, तो वहां पर भी आपने अपनी रफाकत, अपनी मोहब्बत, अपनी वफा और ईसार का एक मिसाली किरदार पेश किया था। किस तरह से? ऐसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, उस वक्त भी आपके साथ जो मामला था, हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला किया वो ये था कि सबसे पहले तो आपका इकरार किया इस बात का कि यकीनन, यानी सबसे ज्यादा तो तसल्ली दी, आप पर ईमान लाई, और साथ ही साथ अपनी तमाम तर दौलत आपके कदमों में ढेर कर दी।
اور یہ وہ खुश किस्मत भी हैं कि जिनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खुद खबर में उतारा और उनके उतरने से पहले खुद उतरे और फिर उसके बाद आपके जस्ते अथर को खबर में उतारा था। और एक और खुशकिस्मती जो हजरत खदीजा के हिस्से में आई वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलादे भी आप ही के जरिए से मिली। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 लकीरें लगाईं और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि इन लकीरों से क्या मुराद है? सब हम नशीन सहाबा ने अदब और एहतराम से अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, इन लकीरों से कायनात की अफजल और बरतर 4 खवातीन मुराद हैं, जिनके नाम ये हैं, आपने नाम गिनाए, जिसमें सबसे पहले खदीजा बिनते खुवैलद, फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान, आसिया बिनते मज़ाहिम यानी फिरौन की बीवी। तो हजरत खदीजा बिनते खुवैलद, इनको सबसे बड़ी बात तो ये कि उम्मुल मोमिनीन होने का एजाज हासिल हुआ और इनके बारे में इस चीज से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं हजरत खदीजा की फजीलत का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किस कदर अहम थी। आइए हजरत आयशा की एक हदीस सुनते हैं। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खदीजतुल कुबरा का तस्करा करते तो बहुत ज्यादा तारीफ करते। मेरे सामने अक्सर व बेशतर उनके एहसानात का तस्करा होता रहता। एक दिन मैंने निस्वानी गैरत का इजहार करते हुए कहा, आप अक्सर व बेशतर सुर्ख चौड़े जबड़े वाली बुढ़िया का तस्करा करते रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपको उससे बेहतर बीवियां इनायत कर दी हैं। मेरी ये तल्ख बात सुनकर आप बहुत रंजीदा हुए और लंबी आह भरकर फरमाया, अभी तक उससे बेहतर बीवी मुझे नहीं मिली। आयशा सुनो, वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब आम लोगों ने मेरा इनकार किया। उसने ऐसे वक्त में मेरी तस्दीक की जब बेशतर लोगों ने मुझे झुटलाया। उसने अपने माल और दौलत से मेरी मदद की जबकि दूसरों ने मुझे जी भर कर सताया और अल्लाह ताला ने उससे मुझे औलाद की नेमत अता की। तो इस हदीस से हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप किस कदर अहम थी। अब हजरत खदीजा के बारे में उनके यानी इस्लाम से पहले की जिंदगी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हजरत खदीजा के बारे में पता चलता है कि वो 556 ईस्वी को मक्का में पैदा हुई और आपकी वालिदा का नाम फातिमा था और वालिद का नाम खुवैलद बिन्त असद था। और ये कुरैश के एक बड़े सरदार थे इनके वालिद और तिजारत किया करते थे, उनका पेशा तिजारत था और माल और दौलत की फरावानी थी, यानी माल बहुत ज्यादा था। और उनका इंतकाल यानी इनके वालिद का इंतकाल एक मशहूर जंग फुज्जार में हुआ। तो हजरत खदीजा ने जो हमें अब इस बात से बात पता चली वो ये कि हजरत खदीजा ने जिस घर में आंख खोली, वो घर कैसा था कि वहां पर पैसे की रेल पेल देखी और जब जवान हुई तो फिर उनका निकाह किया गया और फिर उनका निकाह हुआ अबू हाता मालिक बिन नुबाश के साथ और उससे उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए जिनमें से एक का नाम हाला और एक का नाम हिंद रखा गया। और हजरत खदीजा जो थी वो इंतहाई नाज़ुनेम में पली हुई थी। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नवाजा था, लेकिन हुआ ये कि कुछ ही दिन के बाद यानी आप अपने शौहर के साथ ज्यादा लंबा वक्फा नहीं गुजार सकी और फिर उन शौहर को यानी उन शौहर ने क्या किया, दागे मुफारकत दी और इस दुनिया से कूच कर गए। उसके बाद कुछ अरसे के बाद दूसरा निकाह किया, वो निकाह किया अतीक बिन आइस से और उनके निकाह जब उनसे निकाह हुआ आपका तो उनसे भी एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम हिंदा रखा गया। लेकिन हुआ ये कि उनके साथ ज्यादा दिन तक निभाह ना हो सका और फिर दोनों में अलहदगी हो गई। उसके बाद फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी औलाद की तरबियत और फिर तिजारत को के फरोग में सर्फ करना शुरू कर दी, यानी अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी औलाद की तरबियत में लगाई और अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपने बिजनेस पर ध्यान दिया। और फिर देखते ही देखते अल्लाह ने ऐसी वुसअत दी और फिर वो कुरैश की बहुत बड़ी मालदार खातून बन गई। और उनका तरीका कार ये था बिजनेस करने का, तिजारत करने का, कि वो मेहनती, दयानतदार और सुलझे हुए लोगों को क्या करती थी, अपना माल तिजारत सुपुर्द करती देती थी और उनसे माल लेकर शाम की मंडी में फरोख्त करते थे वो लोग।
और फिर वहां से माल खरीद कर लाते थे, जिसको मक्का की मंडी में लाकर वो बेचते थे, और फिर जो नफा हासिल होता था उसमें से निस्फ उनको दे दिया जाता, यानी हजरत खदीजा को। अब ये हुआ कि जब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने मक्का मुअज़्ज़मा में हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की दियानत, अमानत और हुस्न अखलाक का चर्चा सुना, तो फिर उन्होंने आपकी खिदमत में भी पैगाम भेजा, क्योंकि वो दियानतदार लोगों की तलाश में रहती थी, कि आप अगर मेरा माल तिजारत शाम ले जाना पसंद करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जैसा कि हम और आप जानते हैं ये बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ रहते थे और उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, इंतहाई कमजोर हाल था। तो फिर उन्होंने आपने इस पेशकश को बखुशी कबूल कर लिया, और फिर हजरत खदीजा ने आपके जो गुलाम थे मैसरा, आप उनके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब हुआ यूं कि आप जब माल लेकर शाम तशरीफ ले गए, तो उस बार हुआ ये कि वाफिर मिकदार में नफा हासिल हुआ, और हजरत खदीजा के गुलाम मैसरा ने दौरान सफर बहुत सारे अजीबो गरीब मनासिर देखे। और फिर ये हुआ कि जब इस तरह का जब उन्होंने मंजर देखे, यानी अजीबो गरीब मनासिर का मुशाहिदा किया, जिससे उनको बहुत ज्यादा हैरत हुई। और मैसरा यानी जो हजरत खदीजा के गुलाम थे, वो आपकी हुस्न अखलाक, तर्ज कलाम, संजीदगी और खंदा पेशानी और आपकी बातचीत करने का अंदाज, जो इस कदर इन सारी चीजों से इस कदर मुतासिर हुए कि आपका दिलो जान से वो गिरविदा हो गए। उसके बाद जब मैसरा ने मक्का वापस पहुंचकर जब सफर मुकम्मल हुआ, तो आकर हजरत खदीजा को पूरी बात बताई और बताया कि किस कदर अच्छे अखलाक का मालिक है वो इंसान। तो जब सारी चीजें बताई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अखलाक और बातें सुनकर हजरत खदीजा बहुत ज्यादा मुतासिर हुई, और फिर वो इस नहज पर सोचने लगी कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं आपको अपना सरताज बना लूं और दिल का महरम बना लूं। ये बात जब आपके दिल में आई, तो अब हुआ ये कि ख्याल ये आया कि क्योंकि क्योंकि जब आपने इतना अरसा गुजारा अपने बच्चों की तरबियत और तिजारत के साथ, तो यकीनन एक मक्का की कुरैश की एक बड़ी मालदार खातून थी, एक अच्छी बिजनेस वुमन थी। तो इस वजह से बहुत बड़े बड़े लोगों के आपके पास रिश्ते आते थे, लेकिन आप उस सब की पेशकश को ठुकराती रहती थी। तो अब दिल में ये ख्याल भी आया कि अगर मैं ऐसा करती हूँ, यानी निकाह का पैगाम भेजती हूँ, तो पता नहीं कुरैश के दिल में क्या बात आएगी, और मेरे खानदान वाले ना मालूम उनका रद्द अमल कैसा होगा। लेकिन बहरहाल जब जैसे जैसे आपने सोचना शुरू किया, तो उस तरह से फिर एक मर्तबा हुआ ये, जो बात हमें पता चलती है वो ये कि एक मर्तबा आपने यानी हजरत खदीजा ने एक रात में एक ख्वाब देखा। क्या देखा कि एक चमकता हुआ सूरज घर के आंगन में उतर आया है, जिससे पूरा घर जगमगा उठा। आंखें खुली तो हैरत की इंतहा ना रही। फौरन पहुंची कहाँ पर, वर्का बिन नौफल के पास, जो तौरात और इंजील के मशहूर और मारूफ आलिम थे। उनसे जाकर पूछा कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। तो उन्होंने बताया। उन्होंने ख्वाब सुनकर वो बहुत खुश हुए, मुस्कुराए और कहने लगे कि ये जो चमकीला सूरज जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के आंगन में उतरता तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये नूरे नबुवत है, जो तुम्हारे नसीब में आएगा और तुम उससे फैज हासिल करोगी। उसके बाद हुआ यूं कि हजरत खदीजा की एक गहरी सहेली थी, जिनका नाम नफीसा था। जब उनको आपने पूरी बात बताई अपनी सहेली को, तो उन्होंने फिर ये पैगाम अल्लाह के रसूल के पास वो लेकर गई, यानी उनकी सहेली, और जाकर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज किया, खैरियत दरियाफ्त की, और फिर कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ कहिए, क्या बात है। तो अर्ज किया कि आपने अ, अभी आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास माली गुंजाइश नहीं है जिससे मैं शादी के अखराजात पूरे कर सकूं। तो फिर अगर मैं उसने कहा कि अगर मैं एक मालदार खानदानी हसीन और जमील खातून की निशानदही करूं, जो आपसे शादी करने की रगबत भी रखती हो, तो क्या आपको मंजूर होगी। फरमाया कि हाँ, वो कौन है। तो अर्ज किया कि वो खदीजा बिन्त खुवैलिद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा कि अगर वो रजामंद है, अगर वो चाहती हैं, तो फिर मुझे भी ये रिश्ता कबूल है। और फिर ये जवाब सुनकर नफीसा अपनी दोस्त हजरत खदीजा के पास पहुंची और फिर उनको ये खुशखबरी सुनाई। अब एक अहम रुख की तरफ चलते हैं
हजरत खदीजा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के जिंदगी के अहम रुख की तरफ, वो ये कि जिस वक्त निकाह की बात हुई, निकाह हुआ, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र महज 25 बरस थी और सैयदा खदीजा की उम्र 40 बरस की थी। लेकिन उम्र का ये जो और उम्र का जो ये फर्क था, ये इस रिश्ते में रुकावट नहीं बना। कुछ नहीं हुआ, बल्कि हुआ यूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हमजा, हजरत और अमीर हमजा, ये दोनों सैयदा खदीजा के चचा अम्र बिन असद के पास गए शादी का पैगाम लेकर। शादी की तारीख मुकर्रर हुई और फिर ये निकाह जो था ये हो गया। इसके बाद जब ये निकाह हुआ तो फिर शादी के बाद जब दिन तेजी से गुजरने लगे और अल्लाह ताला ने फिर औलाद की शक्ल में कासिम, अब्दुल्ला, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा जैसी हुनहार औलादें अता करके हजरत खदीजा के आंगन को आबाद कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जब धीरे धीरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह ताला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी आप पर डालना चाहते थे। तो हुआ यूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत दिन ब दिन दुनिया की रंगीनियों से उचाट होने लगी, दुनिया से आपका दिल बददिल होने लगा और आप साल में मुकम्मल 1 माह दुनिया व माफिया से बेनियाज होकर गारे हिरा में मसरूफ इबादत रहने लगे और वहां पर आप बिल्कुल यकसुई के साथ जिक्र फिक्र में मशगूल रहने लगे। और एक रोज फिर वो आया कि अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बगल में लेकर खूब दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा, ए मोहम्मद पढ़ो। आपने फरमाया, मैं तो नहीं पढ़ा हुआ हूँ, भला क्या पढ़ूं? और उसने बार बार बगल में दबा कर ये जुमला दोहराया। आपने हर दफा उसको यही जवाब दिया और आखिर में उसने ये अल्फाज पढ़कर सुनाए जो कुरान हकीम की सीनत पढ़े। क्या थे वो अल्फाज? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया जमे हुए खून के लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिससे वो ना जानता था। उसके बाद हुआ यूं कि वो जो बगलगीर होने वाला था वो गायब हो गया। अल्लाह के रसूल को कुछ इल्म नहीं था कि आखिर वो कौन था, मामला क्या था, कुछ नहीं समझे, सिर्फ घबराए घबराए गए अपने घर। आपका जिस्म कांप रहा था और हजरत खदीजा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो मुझे। और आपको शदीद ठंड लग रही थी और आपको जब कंबल दिया गया तो आप आराम से लेट गए और फिर जब जरा सुकून हुआ तो फरमाने लगे कि खदीजा, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा। अब यहाँ पर जो बात देखने की है और समझने की है वो ये कि अब एक बीवी का हौसला देना, एक बीवी का इत्मीनान दिलाना अपने शौहर का, देखिए किस अंदाज में है वो यहाँ इंशाल्लाह हम सब के लिए सबक है सीखने का। उनका जवाब देखें क्या दिया, वफा की पैकर और जो इंतहाई सच्ची और इंतहाई नेक बीवी थी और इंतहाई वफा शौहर बीवी थी। उनका जवाब आप सुने, उन्होंने कहा कि मेरे सरताज, आप घबराएं नहीं, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, आपको कभी रुस्वा नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आप सुलह रहमी करते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप दूसरों का बोझ उठाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं और मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। यानी अब इस तरह के अल्फाज कहकर एक शौहर को एक बीवी ने तसल्ली दी इस तरह से कि जिससे वो इंसान मुतमईन हो जाए और उसका आधा गम हल्का हो जाए। और फिर ये जो अल्फाज थे जो अपनी हमदर्द और गमगुजार रफीक हयात की ज़बान से ये बातें सुनकर आपके दिल को यकीनन बहुत इत्मीनान हुआ और सईदा खदीजा आपको फिर अपने साथ लेकर अपने चचा साद भाई वरखा बिन नौफल के पास गई। ये माजरा उन्हें पूरा कह सुनाया और फिर सारी दास्तान वरखा बिन नौफल ने जब गौर से सुनी तो बताया कि गारे हिरा में जो बगलगीर होने वाली हस्ती थी, ये तो वही मुकद्दस पैगाम रसा है जो वही लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। काश उस वक्त मेरी जिंदगी हो जब कौम उन्हें वतन से निकाल देगी। आपने ताज्जुब से पूछा, क्या वाकई मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी?
क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज का तस्वुर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको सादिक और अमीन कहा जाता था। लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी लोगों को, लोग आप पर बहुत ज्यादा भरोसा किया करते थे, आपकी इज्जत किया करते थे। और तो ये बात सुनकर आपको बिल्कुल यकीन ना आया, लेकिन फिर क्या हुआ, उसने यकीन भरे अंदाज से कहा, वर्का बिन नौफल ने, कि हाँ, तारीख गवाह है कि आप जैसी जिम्मेदारी जिसको भी सौंपी जाती है, उसकी कौम ने उसके साथ यही सलूक किया, और साथ ही कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो उस वक्त मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा, आपका साथ दूंगा। तो ये था वो वाकया कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वक्त था, हजरत जिब्राइल का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो उस वक्त इस तरह से एक शौहर को एक बीवी ने जो तसल्ली बख्श जुमले कहे, जिस तरह से तसल्ली दी, उसमें हम सब के लिए यकीनन बहुत गहरा सबक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के जो बेटे थे हासिम और अब्दुल्ला, वो बचपन ही में अल्लाह को प्यारे हो गए। और अब जो एक बेटी हजरत रुकैया थी, वो हजरत उस्मान हजरत रुकैया, ये हजरत उस्मान की बीवी थी। इनको हबशा की हिजरत के लिए रवाना किया गया, यहाँ मक्का वालों की तकलीफों की वजह से। और फिर उसके बाद जब कुफ्फारे मक्का ने देखा कि हमारा किसी तरह का भी कोई हरबा कारगर साबित नहीं हो रहा है, तो अब इस्लाम की शोहरत रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया। और किस तरह का मशवरा, कैसा मशवरा, ये कि अब बनु हाशिम के साथ मुकम्मल सियासी और इक्तिसादी बाईकाट का फैसला कर लिया। और वो क्या है जिसको हम और आप शैब अबी तालिब के नाम से आज याद करते हैं। तो उस वक्त आप जरा गौर करें इस बात पर कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जिनकी पूरी जिंदगी नाजुनाम में गुजरी, बेपनाह दौलत जिनके घर में थी, और अब जरा आप देखें कि शैब अबी तालिब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, तो वहां उसमें भी हजरत खदीजा शामिल थी। और वहां पर उन्होंने इंतहाई सब्र के साथ और तमाम इक्तिसादी मुश्किलात और मसाइब को बहुत ही कंधा पेशानी के साथ कबूल किया, उन सारी चीजों का मुकाबला किया। और ये जो अलमनाक वाक़या था, ये नबुवत की 7वीं साल में पेश आया था। और ये मुहासरा कोई छोटा मोटा मुहासरा नहीं था, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि छोटी मोटी तकलीफों के साथ लोगों ने आजमाया था, नहीं, बल्कि मुहासरा इतना शदीद था कि बच्चे भूख और प्यास की बिना पर बिलबिला उठे थे, और बड़ों को दरख्तों के पत्ते खा खा कर जिंदगी गुजारना पड़ रही थी। लेकिन ये सारी जो तकालीफ थी, ये फिर जो सारे अल्लाह के इस्लाम के जानिसार थे, अल्लाह की राह से हटाने का बाइस ना बने। ये तमाम तकलीफें उनको अल्लाह की राह से हटाने वाली ना बनी, बल्कि बिल्कुल इस तरह से हुआ कि इस भट्टी से वो कुंदन बनकर निकले। और ये तो जिस तरह से हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और जितनी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और वफा की मिसाल कायम की, तो यकीनन वो एक बहुत ज्यादा काबिल तारीफ बात है। और इसी वजह से हजरत खदीजतुल कुबरा के औसाफ हमीदा और आपके जो बेहतरीन अखलाक, अच्छे अखलाक थे, अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आए कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान से बतौर खास सलाम कहने के लिए भेजा। और सही बुखारी में यह हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे बताया कि खदीजा बर्तन उठाए आ रही है, उसमें कुछ खाने पीने का सामान है। जब वो आपके पास आए तो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का और मेरा सलाम कहना, और उसे जन्नत में एक ऐसे घर की बशारत देना जो हीरे का बना हुआ होगा और उस पर याकूत से मीनाकारी की गई होगी, ना उसमें कोई शोरगुल होगा, और ना ही कोई मेहनत और मशक्कत होगी। यानी इन तमाम जो आपने कुर्बानियां दी, और जिस तरह से वफा की एक अपने नबी के साथ, अपने शौहर के साथ, तो उसके बदले में जो उसका बदला दिया गया, उसकी खुशखबरी दुनिया में ही आपको दे दी गई, यानी जन्नत की खुशखबरी और जन्नत में एक खूबसूरत घर की खुशखबरी। इसके अलावा
सैयदा खदीजतुल कुबरा के बतन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई। पहले बेटे का नाम कासिम रखा गया और उसी मुनासिबत से आपने अपनी कुनियत भी अबुल कासिम रखी थी, और दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा था और उसे तैयब और ताहिर के लक़ब से भी पुकारा जाता था। लेकिन दोनों बेटे बचपन ही में फौत हो गए थे और दूसरे बेटे की वफात पर जब कुफ़ार ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब मोहम्मद का कोई नाम लेवा नहीं रहा, तो अब अल्लाह ताला ने फिर सूरह कौसर नाजिल की थी। और तीसरे बेटे जिनका नाम भी इब्राहिम रखा गया, तीसरे बेटे जिनका नाम इब्राहिम रखा गया, वो पैदा हुए मारिया खुफ्तिया के बतन से, और उनकी भी अभी मुद्दत रज़ात खत्म नहीं हुई थी, बहुत छोटे थे और उन्हें भी अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, वो भी इस दुनिया फानी से चले गए। और हजरत खदीजा के बारे में जो बात हमें पता चलती है वो ये कि आपने तमाम बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल, तरबियत में बहुत ज्यादा बड़ा एहतमाम किया, और जिस घर में और आपने अपने बच्चों की परवरिश, उनकी तरबियत, उनकी देखभाल का बहुत ज्यादा एहतमाम किया, और अपने बच्चों की यानी इन जो खुद सी सिफात बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम किया गया, उसे अजमत और बरकत की चार चांद लग गए। किस तरह? क्योंकि तवील अरसे तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी घर में क़याम किया और उस घर में वही के जरिए से कुरान नाजिल होता रहा। और जब दीन की बात आती है तो फिर उसमें हजरत खदीजा का जो हमें किरदार मिलता है वो ये कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फर्ज होने से पहले 2 रकत नमाज सुबह और 2 रकत नमाज शाम में पढ़ा करती थी, और अभी नमाज फर्ज नहीं हुई थी, लेकिन ईमान लाने के बाद उनकी तबीयत इबादत इलाही और जिक्र फिक्र की तरफ बहुत ज्यादा रागिब थी, और उसमें उन्हें रूहानी लज्जत महसूस होती थी। यानी उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया था, अल्लाह की मोहब्बत को पहचान लिया था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उन्होंने जान लिया था। इसलिए वो इस तरह इबादत में भी जो फर्ज नहीं हुई थी उसके बावजूद भी इबादत में आगे आगे रहती थी। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में हमें ये पता चलता है कि हिजरत से 3 साल पहले, यानी 65 साल की उम्र में वो इस दुनिया से कूच कर गईं और फिर जन्नतुल फिरदौस के सफर पर रवाना हुई। वफात से चंद लम्हात पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा को नज़ा की हालत में देखते हुए इरशाद फरमाया था कि तुम जिस चीज को नापसंद कर रही हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसमें खैर बरकत के खजाने रखे हैं। ये सुनकर उनके आंखों में बहुत ज्यादा मसरत और शादमानी की चमक पैदा हो गई, और जिंदगी के आखिरी लम्हात में हजरत खदीजा की निगाहें अपने शौहर यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर गड़ी हुई थी, और उनकी पाकीज़ा रूह इस दुनिया से परवास कर गई। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही आपको लहद में उतारा, और इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 सदमे पैदर पे आए। किस तरह कि पहले आपके गमगुजार चचा का इंतकाल हुआ, और फिर उसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी इस दुनिया से कूच कर गईं। इसीलिए इस साल को, जिसमें ये 2 सदमे बड़े बड़े आपको सहना पड़े, वो उस साल को कहा जाता है आमुल हिज़्न, यानी गम का साल। गम की शिद्दत ये इसलिए नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 मोहसिनों की से दागे मफारकत आप आपको दे चुके थे वो, बल्कि इस बिना पर थी कि इन लोगों के चले जाने के बाद आपको इशाअत में, दावत के कामों में इंतहाई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इंतहाई मसाइब आपको झेलना पड़े, और जो जिस तरह से उनकी जिंदगी में भी थे, लेकिन लोग उस तरह से वार नहीं कर पाते थे, उस तरह से आप पर हमले नहीं कर पाते थे, जिस तरह से इन लोगों के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झेलना पड़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मसाइब का सामना करना पड़ा। एक तो बात ये कि चचा ने
اس لیے کہ وہ جو अपना उनका जो असल रसूख था, तो उस वजह से अक्सर लोग पीछे रहते थे। और सईदा खदीजा जो थी, जिन्होंने अपने माल दौलत और वफाशारी और खिदमत गुजारी से आपके दिल को बहुत ज्यादा तसल्ली दी हुई थी, और इस बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वफात को शिद्दत से महसूस किया। और हजरत खदीजा की वफात के बाद आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बुझी बुझी रहने लगी। और खौला बिनते हकीम एक रोज ताजियत के लिए आई, अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सैयदा खदीजा के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आप बड़े गमगीन दिखाई देने लगे हैं। आपने फरमाया, क्यों नहीं, वो मेरे बच्चों की शफीक माँ थी, मेरी गमगुजार थी, और उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मेरी रफाकत में आकर वो दुनिया की हर चीज को भूल गई थी। उसने मोहब्बत, वफादारी और सलीके का हक पूरा पूरा अदा कर दिया। मुझे वो भला क्यों ना याद आए, मैं उसे किस तरह भूल सकता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये रहा अल्लाह की हजरत खदीजा की इस दुनिया से जाने के बाद भी, कि जब कोई चीज लाई जाती तो आप फरमाते कि ये चीज फलां औरत के घर पहुंचा दो, वो खदीजा की सहेली थी। यानी आपकी मोहब्बत का आलम ये था कि कोई चीज यानी तोहफे वगैरह भेजने का एहतमाम आप उनकी सहेलियों के यहाँ भी किया करते थे। और जब कभी कोई बकरी वगैरह ज़िबह करते तो फरमाते कि ये गोश्त खदीजा की सहेलियों के घर पहुंचा दो। तो ये थी हजरत खदीजा के बारे में चंद बातें, उनकी जिंदगी के चंद पहलू जो हमने देखे कि किस तरह ये खातून जन्नत सैयदा ताहिरा खदीजतुल कुबरा ने अपनी उम्र के 65 साल तक आप जिंदा रहीं, और फिर आपको उम्मुल मोमिनीन बनने का भी शर्फ हासिल हुआ। और फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में 24 साल कुछ माह गुजार कर फिर अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह उनसे राजी हो और वो अल्लाह से राजी। अब इंशाल्लाह ये जो हजरत खदीजा के बारे में बात हमने पढ़ी, जो चीजें हमने देखी, उसमें हम अपने लिए कुछ सबक देखेंगे, अपने लिए हम कुछ चीजें देखेंगे कि आखिर हमने हजरत खदीजा के बारे में पढ़कर हमने क्या चीजें हासिल की, हमें क्या समझ में आया, और या फिर हमने क्या सीखा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग खुद इस बात की कोशिश करें कि आप लोग जरूर आगे बढ़कर बोलें, आप लोग हैंड रेस करें कि जिनको जो चीज समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब हम सब लोग मिल के बात करते हैं और सबकी तरफ से अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, तो उससे वो हम सब के लिए उसमें फायदा होता है, हम सबको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात जो इनके बारे में है वो यकीनन यही है कि जो एक शौहर के साथ जो मामला है, एक बीवी होना यानी एक वफादार बीवी होने का जो आपने वो अंजाम दिया, एक फर्ज कि किस तरह से एक बीवी को होना चाहिए और किस तरह से मुश्किल औकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो हम थोड़ा सा अपनी जिंदगी को अगर देखें कि हमारी जिंदगियों का मसला ये है कि हमने अपनी जिंदगी को इतना महदूद बना लिया है और इतना महदूद हो गए अपनी जिंदगी के अंदर कि हमारे लिए छोटे छोटे गम बड़े बन जाते हैं। वो किस तरह से कि अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया वो हमारे लिए साल 2 साल के लिए हो जाता है। हम अगर हमें किसी ने तकलीफ पहुंचा दी, हमें कोई बुरी बात कह दी, कुछ कह दिया, और अगर हमें पता चले तो अब उसको हम दिल में लेके बैठे रहते हैं। तो हमारा मसला ये है सबसे बड़ा कि हमने अपने जो जिंदगी गुजारने का तरीका था उसको हमने पहचाना ही नहीं, उसको हमने समझा ही नहीं, बल्कि हमने अपनी जिंदगी को अलग तरह से यानी दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की मोहब्बत में और दुनिया की सारी चीजों में लेकर हम इतने ज्यादा मगन हो गए हैं और इतने ज्यादा हमें एहसास तक इस चीज का नहीं होता कि आखिर हमारी जिम्मेदारियां क्या थी, हमारी जिम्मेदारियां हैं क्या। तो इंशाल्लाह हम जब ये जिस तरह से पढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह अगले वीक यानी अगले फ्राइडे को हम हजरत सौदा के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसी थी, उससे भी इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन यहाँ से जो जो बातें हमने सीखी, यहाँ से जो जो बातें हमें पता चली हजरत खदीजा की जिंदगी से, तो मैं चाहूंगी कि आप में से जरूर जो लोग भी बोलना चाहें एड्रेस करें। इंशाल्लाह मैं आप में से उन लोगों का नाम लूंगी और फिर एक एक पॉइंट की शक्ल में बस रखें कि हमारा मामला क्या है और हमें होना करना क्या चाहिए। तो प्लीज आप लोग जरूर इसमें हिस्सा लें आगे बढ़कर और जरूर इसको आप लोग बताएं।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ شوہر کے سپورٹ میں ہونا چاہیے، چاہے ان کے ساتھ کیسی بھی تکلیف ہو یا ان کے ہر غم میں، یا جو مال سے ریلیٹڈ ہو، یا پھر آپ ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہو، یا کوئی بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہو، لیکن ہمیں ہمیشہ ان کے سپورٹ میں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انہیں تسلی رکھنی چاہیے کہ نہیں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یا چاہے کیسی بھی تکلیف ہو ہمیں ان کے سپورٹ میں ہی ہمیشہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج یہ تکلیف آ گئی، آج ہمارے پاس خوب پیسہ ہے، مال و دولت ہے، تو ہم بہت اچھے سے ان کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ہم مال کی کمی آتی ہے یا تو مطلب گھر کی لیڈیزوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ ہو گیا تو کیسے ہو گیا، پھر ہوتا ہے کہ نہیں آپ کچھ اور کر لیں. مطلب لیڈیزوں کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ سپورٹیو نہیں ہو پاتی ہیں، پھر وہ کہتی جی ہے کہ نہیں ہمیں گھر جانا ہے، اور پھر مطلب کافی سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی تو ہمیں جی یہ یہی صبر چیزیں کے پھر ساتھ رنجیشوں کا ہمیں باعث بنتی ہیں. جی 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 بس ایک ایک پوائنٹ میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کریے، اور آپ تمام لوگ جو لوگ بھی بولنا چاہتے ہیں پہلے ہینڈ ریز کر لیجیے. جی شاکرہ سید آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں صبر کی تعداد بڑھا دینی چاہیے، ہم میں صبر بہت کم ہو گیا. جی بالکل ٹھیک، بہت اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے. جی راہینہ آپ بتائیے. جی راہینہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بس ویسے تو پوری زندگی ہی ان کی ہمارے لیے ایک مثال ہے. اگر ہم جس پوائنٹ کو دیکھیں وہاں ہم اپنا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم خود سبق آموز ہیں اس کے لیے. جی اور باقی شوہر کے ساتھ جو وفاداری ہے، اور اتنی مال و دولت ہوتے ہوئے اور پھر ایسے گھرانے میں انہوں نے نکاح کیا اور پھر اس کے ساتھ بھی وفاداری نبھائی، تو یہ بہت ہی اچھا اور ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے. جی بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے. جی عائشہ حاسم آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بولیے. ان کی آواز نہیں آ رہی ہے دوسری. جی ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ. جی عائشہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، ہم انشاءاللہ دوسری بہن کو بلاتے ہیں. انشاءاللہ آپ اگلی بار آپ کو انشاءاللہ موقع دیں گے. جی ڈاکٹر افروز جہاں آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ اسپیشلی آج مسلم سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رشتے کی بات چلتی ہے تو لڑکی والے اپروچ نہیں کریں، لڑکے والے ہی اپروچ کریں لڑکی والوں کو. تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپروچ کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ایک نمونہ ہے، اگر سوسائٹی اس کو فالو کرے اور اس سے فائدہ بھی پہنچے لڑکیوں کو، خاص طور سے لڑکی گھر والوں کو. بالکل ٹھیک بات آپ نے بتائی. بہت اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے. یقیناً ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے اس میں، خاص طور پہ آج کے حالات میں. جی صفا آفرین آپ بتائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سے ایک اہم سبق یہ ملا کہ ہر حال میں شوہر کا ساتھ دینا. جیسے اکثر بیویوں میں نااتفاقی ہوتی کہ ہم تمہاری بات کیوں سنیں، لیکن جب یہ حضرت خدیجہ ام المومنین خدیجہ کا قصہ ہم پڑھتے یا سنتے تو ہمارے دل کو یہ بھی ہوتا کہ وہ جب سارے لوگ ان کے مخالفت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑے، ہر حال ان کے ساتھ رہے. اس لیے ہمیں بھی اپنے شوہروں کا ساتھ دینا چاہیے. جی عائشہ سید کو خالدہ بلاؤ. شیخ. خالدہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں یہ کہوں گی کہ ہر وقت بیوی جو ہے نا شوہر کے ساتھ ہی ساتھ دینا چاہیے، بے جا خواہشیں نہیں کرنا چاہیے. اس سے نا اتفاق کی پیدا ہوتی ہے اور گھر جو ہے جہنم بن جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی بالکل ٹھیک، بہت اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے بھی. جی عائشہ سید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے آج کے حصے سے یہ لگا کہ ہم لوگ شوہر کے بڑے ناشکر ہو چکے ہیں.
मतलब कुछ भी काम होता है हम हर वक्त शौहर को ही गलत समझते हैं, तो हमें मतलब उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, अच्छा पॉइंट रखा आपने भी। जी दीबा आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमें खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये सबक मिलता है कि वो इतने पैसे वाले होके भी, इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन होके भी एक गरीब खानदान में रिश्ता शादी की और उससे निभाया भी वो रिश्ते को। जी बिल्कुल ठीक, कि उन्होंने यहाँ पर ना मालो दौलत देखी ना कुछ देखा, जो आज हमारे मुआशरे में जो एक बीमारी है ये कि हमारे यहाँ जब रिश्ता देखा जाता है तो सबसे पहली चीज जिसपे पैसा। हम सबका फोकस होता है वो यही होता है कि हम सबसे ज्यादा यही देखते हैं कि उसकी माली हैसियत क्या है, वो दीनदार है या नहीं है, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, नमाजी है कि नहीं है, नेक है या नहीं, कुछ इससे हमें मतलब ही नहीं होता। जी खालिदा शेख। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए जल्दी से, फिर और लोगों को मौका देंगे। बोली तो अभी बोली मैं नहीं अच्छा बोला। शायद आपके शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है रहने दीजिए हम। जी असनांजुम आप बताइए। असल में एक लड़की है कि जब एक लड़की होती है तो वो हम जैसे जैसे लोग हैं और लोगों में मतलब ये होता है कि अक्सरियत हम ये सोचते हैं कि हम जो अपनी जिंदगी गुजारेंगे साबियत के अकॉर्डिंग गुजारेंगे, तो उसमें से एक पॉइंट जो मैंने सोचा है वो ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि आसपास हमारे बहुत सी ऐसी बातें होती हैं हमसे सामने बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं, बहुत सही भी बोलते हैं, लेकिन हमारा तर्ज अमल ये रहना चाहिए अगर हम हक बात पे हैं तो हमें चुप हो जाना चाहिए। अल्लाह आगे आने वाले टाइम में हम मतलब हम सब्र की हमें अज्र जरूर देगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने भी। जी तबस्सुम जमाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सभी ने कहा जो उससे मेरा इत्तेफाक है कि शौहर की मोहब्बत और उनका ध्यान और उनकी दिलजोई करना ये सब हम लोग करना चाहिए, और साथ साथ एक और सबक मिला कि बच्चों की अच्छी परवरिश बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने बार बार अपने भी जैसा बताया कि बच्चों की परवरिश पर उन्हें खूब ध्यान दिया था। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे पॉइंट आप लोगों ने रखे। जी मुसव्विर रिजवाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आजकल के हम माहौल में देख रहे हैं कि जैसे लड़की रिश्ता करते हैं तो लड़का बड़ा होना चाहिए, लड़की छोटी होनी चाहिए एज में, लेकिन इनके खदीजा के उससे हमें मिलता है कि वो उनसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, तो ये कोई ऐसा गलत बात नहीं है। आजकल के भी इसमें हो सकता है ये इस तरह की शादी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, अगर इंसान सिर्फ दीनदारी को देखे और सिर्फ अखलाक को देखे तो यकीनन हो सकता है, लेकिन अगर हमारी नजरें और सारी चीजों पर हैं तो यकीनन इसमें फिर मुश्किल आती है। जी फरजाना जाफर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक सबक हमको ये भी मिलता है कि उनके शौहर गुजर जाने के बाद भी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर गुजरने के बाद उन्हें बेवा रहने के बावजूद भी मतलब दूसरी शादी करने का सोचे। तो आजकल ये तो आम होगा कि मतलब कोई बेवा हो गए तो उनको जो है वो बात बोलते हैं ना कि ऐसा डरे इनके बेवा होने के बाद में भी बल्कि तो ये भी मतलब देखिए अगर बीबी खदीजा की जिंदगी को देखेंगे तो हमारे लिए एक सबक है ये कि कर सकते हैं मतलब अगर चाहे शौहर रहने दो बीवी रहने दो, जब अगर उनको शादी की जरूरत रही या फिर बच्चे उनकी परवरिश या फिर आगे बढ़ाने का मसला रहा तो हम ये कर सकते हैं ना इसके जी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि एक औरत बगैर शौहर की जिंदगी नहीं गुजार सकती और एक मर्द बगैर औरत की जिंदगी नहीं गुजार सकता। जी मतलब अगर से अच्छी उम्र है जिनके आजकल मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ पर मतलब बस्ती के हालत में कि एक खवातीन हैं कि उनके शौहर गुजर गए लेकिन उनकी उम्र उनके लिए ना कोई सोच रहे
उन्हें कुछ नहीं, और उन्होंने होके तो कैसे सोचेंगे, मतलब रिश्तेदार क्या बोलेंगे, बल्कि ये सोच के भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ सक रहे। तो हमारे लिए ये एक सबक है, इसमें नसीहत है, इसमें मैं जी, सही बात है। जी, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका भी। जी, आयशा हासिम आपका तो शायद होगा ना? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमें चाहिए कि अगर हम किसी को भी देखें तो हमें उसके माल दौलत को नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना उसके अखलाक को देखना चाहिए, वो कैसा है कैसा नहीं है। हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि उसके पास कितना माल है कितना दौलत है। अगर हम जब भी किसी को देखें